Hi guys, so this is lesson 16 part 2 of Modern India Tamil Nadu class 12, and this lesson is about the Indian national movement 1917 to 1947, and this is very important chapter. So we have covered till civil disobedience movement in the last part, and now we will start with round table conference. So the first roundtable conference occurred in November 1930 in London. So basically Simon Commission had provided some recommendations to consider those recommendations. Roundtable conferences were arranged. And in January 1931, British government lifted ban on Congress and released leaders क्योंकि first roundtable conference में किसी ने participate ही नहीं किया था. तो ब्रिटिश को लगा कि अगर हम बैन लिफ्ट कर देते हैं, लीडर्स को भी रिलीज कर देते हैं तो कुछ प्रोडक्टिव कॉन्वर्सेशन हो पाएगा. ओके. सो 8 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट साइन हुई, जिसमें गांधी ने लॉर्ड इरविन को प्रॉमिस किया दैट वी विल सस्पेंड सिविल डिसोबीडियंस and participate in second roundtable conference. So second roundtable conference is the only roundtable conference in which Congress participated. Okay. So second round table conference September 1931 में हुई थी in London again, but Mahatma Gandhi was not happy with whatever happened in round table conference because there were disputes on communal issues, फिर separate electorates, तो कुछ भी final conversation पहुंच नहीं पाई, and that is why Mahatma Gandhi was disappointed. And इसीलिए January 1932 में civil disobedience movement was resumed because they were not happy with whatever was happening in round table conferences. And obviously उन्होंने movement resume की तो महात्मा गांधी and सरदार पटेल were arrested and ban on Congress was reimposed. फिर से बैन कर दिया गया था. So next we are going to talk about Pune Pact 1932. तो पहले थोड़ा background जान लेते हैं. So in first roundtable conference, Bhimrao Ambedkar, Dr. Bhimrao Ambedkar, he demanded separate electorates for depressed classes क्योंकि उनको लग रहा था कि depressed classes की representation सही से हो नहीं पाती है and they are very oppressed. ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने ये demand रखी थी. And by 1930, like he was a leader of national stature, so British government finally paid heed to his demand, and on 16th August 1932, British Prime Minister Ramsay MacDonald he announced communal award, which was separate electorates for depressed classes. और इसको सुनने के बाद महात्मा गांधी he went on for fast unto death. क्यों? Because he felt that this is not right. Considering depressed classes different from Hindus is not right. He wanted that ये आप separate electorates दे दोगे तो फिर ये division आ जाएगा, which he felt was not right. तो इसीलिए उन्होंने fast unto death रखा था in the Yerawada jail on 20th September 1932. And उसके बाद ही ये पूना पैक्ट साइन हुई थी. Finally, on September 24, 1932, agreement was made between Gandhi and Ambedkar in which it was decided that depressed classes will be provided reservation within Hindu electorates only. आप अलग से separate मत करो. एंड उस हिसाब से उनको एक्चुअली में अगर कम्युनल अवार्ड एप्लीकेबल होती तो डिप्रेस्ड क्लासेस को 71 सीट्स का रिजर्वेशन मिलता. लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में जब ये आपका पूना पैक्ट साइन हुआ जिसमें कहा गया कि आप विद इन ही बस रिजर्वेशन देंगे हम डिप्रेस क्लासेस को, तो 148 सीट्स एक्चुअली प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में रिजर्व हुए थे फॉर डिप्रेस क्लासेस. ओके. सो बेसिकली देखिए जो साइन हुआ था ये पूना पैक्ट ये मदन मोहन मालवीय और अम्बेडकर के बीच हुआ था. ठीक है, बट दिस अग्रीमेंट इज ऑफ कोर्स बिटवीन गांधी एंड अम्बेडकर. ओके. सो यस. फिर उसके बाद थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी नवंबर दिसंबर 1932 में, जिसमें अगेन कांग्रेस डिडंट टेक पार्ट. लेकिन सही बात यह है कि कांग्रेस को इनवाइट ही नहीं किया गया था इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में. ओके. एंड मार्च 1933 में फाइनली आफ्टर ऑल द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस ब्रिटिश गवर्नमेंट इशूड अ वाइट पेपर एंड ऑन दैट बेसिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 वाज इनैक्टेड. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थे इसमें तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में कुछ कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें तेज बहादुर सप्रू हैं, फिर आपके अंबेडकर हैं, उन्होंने भी तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए थे. तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है. तेज बहादुर सप्रू इज वेरी पॉपुलर, आई थिंक पूछा गया है कहीं पे, इसलिए ये थोड़े सबको याद होता है. तो ओके. ओके. फिर आई सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ठीक है, तो अभी क्या हुआ था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले आपका 1935 एक्ट आई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935. तो उसके बेसिस पे इलेक्शंस हुए 1937 के, जिसमें कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बने थे 7 स्टेट्स में. अच्छी खासी
विक्ट्री हुई थी कांग्रेस की। 1 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट एंड ब्रिटिश ने बिना इंडियंस की कोई ओपिनियन लेने के, बिना इंडियंस के ओपिनियन के डिक्लेयर कर दिया दैट इंडिया इज ऑल्सो गोइंग टू टेक पार्ट इन द वॉर फॉर ब्रिटिश। ठीक है। और इसी वजह से जो हमारे कांग्रेस मिनिस्ट्रीज से जो कांग्रेस के लीडर्स थे, गांधी थे, एवरीबडी वॉज डिसअपॉइंटेड, वेरी फ्यूरियस, एंड दैट इज वाई ऑन 12 दिसंबर 1939 कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड। ओके, उन्होंने रिजाइन कर दिया प्रोटेस्टिंग कि आप बिना हमसे पूछे कैसे ये डिक्लेयर कर सकते हैं दैट इंडिया इज पार्टिसिपेटिंग इन द वॉर। एंड ऑन दिस डे मुस्लिम लीग सेलिब्रेटेड डिलीवरेंस डे। बेसिकली ऑन 22 दिसंबर मुस्लिम लीग सेलिब्रेटेड डिलीवरेंस डे। उन्होंने इसकी खुशी में कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन कर दिया, क्योंकि उनके हिसाब से कांग्रेस वाज नॉट डूइंग वेल फॉर द कंट्री। और जिन्ना वाज जॉइंड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एंड E.V. रामास्वामी नाइकर पेरियर, जिनको बोला जाता है, उनको टाइटल दिया जाता है, ऑफ जस्टिस पार्टी। एंड दिस होल डिलीवरेंस डे वाज डिसअप्रूव्ड बाय सीनियर कांग्रेस लीडर अबुल कलाम आजाद। ठीक है। तो मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एंड E.V. रामास्वामी नाइकर, दे वर नॉट हैप्पी विद कांग्रेस, और इसीलिए जब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन किया था 12 दिसंबर 1939 को, दे फाउंड कि दिस इज गुड फॉर द कंट्री। ठीक है, क्योंकि ये लोग डिमांड्स नहीं देख रहे हैं मुस्लिम्स की, रिप्रेस्ड क्लासेस की, और और भी लोगों की जो अप्रेस्ड हैं। तो इसीलिए डिलीवरेंस डे सेलिब्रेट हुआ था 22 दिसंबर 1939 को। एंड इन मार्च 1940 मुस्लिम लीग हैड फाइनली केप्ट देयर डिमांड फॉर पाकिस्तान। ठीक है, तो 1940 में ये डिमांड शुरू हुई थी। और आपको ये पता होना चाहिए कि जिन्ना वाज पहले कांग्रेस का पार्ट। ओके, सो ही लेटर मूव्ड इनटू मुस्लिम लीग। जब उन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे और उसको कंसिडर नहीं किया गया, तो फिर उनको लगा कि नहीं, दे आर नॉट लिसनिंग टू मुस्लिम्स डिमांड्स, तो फिर बाद में वो मुस्लिम लीग के पार्ट बने थे। पहले वो कांग्रेस के ही पार्ट थे। So on 8th August 1940, अगस्त ऑफर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। बेसिकली दर्द पे मलहम लगाना था, क्योंकि उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऐसा काम कर दिया था, अनाउंस कर दिया। उसके बाद ऑब्वियसली जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थे या फिर इंडियन लीडर्स थे वो फ्यूरियस थे, तो उनको थोड़ा उनका दुख कम करने के लिए ये अगस्त ऑफर दिया गया था। लेकिन की होता है ना, अब हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाएंगे आप लोगों के साथ, तो आप लोग हमारा कोऑपरेशन कीजिए बस इस वर्ल्ड वॉर में। बट गांधी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस ऑगस्ट ऑफर एंड ही लॉन्च्ड इंडिविजुअल सत्याग्रह। ओके, सो दिस इंडिविजुअल सत्याग्रह, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, मतलब अकेले अकेले सत्याग्रह करो। इट वॉज लिमिटेड, सिम्बॉलिक एंड नॉन वायलेंट। नॉन वायलेंट तो होना ही है, गांधी जी करवा रहे हैं तो। और मतलब सिंबॉलिक, मतलब ये बहुत ज्यादा वैसे हाई लेवल पे चीजें नहीं हुई थी, और इसमें गांधी जी को फ्रीडम दी गई थी कि आप ही चुनो कौन सत्याग्रही होने वाला है। तो फर्स्ट जो सत्याग्रही थे वो थे आचार्य विनोबा भावे, और इनको फिर उसके बाद 3 मंथ के लिए जेल भेज दिया गया था। सेकेंड सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू, फिर इनको 4 महीने के लिए जेल भेज दिया गया था। ओके, सो दिस इंडिविजुअल सत्याग्रह ऑल्सो कंटिन्यूड फॉर नियरली 15 मंथ्स। तो बेसिकली ये होता है ना, बस मूवमेंट को एक्टिव रखने के लिए, कि दिख रहा हो कि हाँ काम चल रहा है, लोग भूल ना जाए कि हमें लड़ना है अपने फ्रीडम के लिए। ठीक है, तो इसलिए भी कुछ चीजें कंटिन्यूएशन रखने के लिए भी ये चीजें रखनी पड़ती थी। So finally, like in July 1941, Viceroy Linlithgow, he included 5 more Indians in Executive Council. तो ये लोग देख रहे हो, अब धीरे धीरे रिप्रेजेंटेशन बढ़ा रहे थे, क्योंकि इन्होंने प्रॉमिस भी कर दिया था अब तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडियन प्रोविंसेस। तो 23 मार्च 1942 को यही सब कंटिन्यूएशन रखने के लिए, कि होता है ना, अब हम और आपको राइट्स देंगे, धीरे धीरे हम अपने प्रोमिस फुलफिल करेंगे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वाले। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को इंडिया भेजा गया था। ठीक है, और इसीलिए हम इसको क्रिप्स मिशन बोला जाता है उनके नाम पे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के। तो ये आई और इन्होंने फिर सारी चीजें देखी और इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए। दैट वाज कि हाँ, इंडिया को डोमिनियन स्टाटस दिया जाए। ठीक है, माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाए जिसमें प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश प्रोविंसेस दोनों हो, और प्रिंसली स्टेट्स के पास जो भी जो भी लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ना हो ये या कोई कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। ठीक है, या फिर जो अभी एग्जिस्टिंग है उसको रिटेन कर सकते हैं, और या फिर नया भी बना सकते हैं। मतलब अगर किसी को ज्वाइन नहीं करना है तो वो हट सकता है इंडिया से। एंड दिस प्रोविजन वाज डेफिनेटली नॉट लाइक्ड बाय गांधी जी एंड कांग्रेस। ठीक है, उनको ये अच्छा नहीं लगा कि प्रिंसली स्टेट्स, या फिर होता है ना, आप
वहाँ की ऐसे स्टेट्स को फ्रीडम दे रहे हो कि वो चाहें तो निकल सकते हैं इंडिया से। ये चीज उन्हें सही नहीं लगी। उनका था कि नहीं, सबको मिलकर आना है, प्रिंसली स्टेट्स भी साथ होंगे और सब मिलके इंडिया बनाएंगे। ठीक है, बट यहाँ पे इन्होंने ऐसा प्रपोजल नहीं दिया था। इन्होंने दिया था नहीं, अगर प्रिंसली स्टेट्स चाहे तो वो नहीं भी ज्वाइन कर सकती। ठीक है, जो कि आप देखोगे लास्ट तक रहता भी है ये प्रोविजन। ओके, तो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ने तो रिजेक्ट कर दिया क्रिप्स के प्रपोजल्स, और गांधी ने इनको इसको पोस्ट डेटेड चेक बताया था कि आप तो पीछे ही जा रहे हो, मतलब हम लोग आगे की डिमांड रख रहे हैं, आप कहाँ पोस्ट डेटेड चेक दे रहे हो, कि मतलब होता है ना बाद में कुछ चीजें होती रहेंगी, व्हाट इज दिस। ठीक है, फिर मुस्लिम लीग वाज डेफिनेटली डिससेटिस्फाइड क्योंकि उनके पाकिस्तान की डिमांड को नहीं माना गया था इसमें। ओके, सो सब नाखुश थे ये क्रिप्स मिशन के जो भी प्रपोजल्स थे। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। सो उसके बाद ऑब्वियसली क्विट इंडिया मूवमेंट आई थी 1942 से 44 के बीच में, क्योंकि क्रिप्स मिशन के प्रपोजल्स को देख के इन्होंने आशा छोड़ दी थी कि अभी इनसे तुरंत तो ये लोग कुछ और नहीं करने वाले अपने से, वी विल अगेन हैव टू रिवाइव द नेशनल मूवमेंट। एंड ऑल्सो गांधी जी वॉज फियरिंग एंड यू नो इम्पेंडिंग जापानीज इन्वेजन, तो उनको लगा कि फिर से अब जापानीज इन्वेजन का भी डर हो गया था। तो उनको लगा कि क्रिप्स मिशन भी सही से कुछ प्रपोज नहीं किया है, जापानीज भी कभी भी इन्वेट कर सकते हैं, तो हम लोग एक फाइनल ब्लो देते हैं अब इंडियन नेशनल मूवमेंट को, एंड दैट वाज क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, तो 8 अगस्त 1942 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बॉम्बे में मिली, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास किया, एंड गांधी जी गेव द स्लोगन ऑफ डू और डाई। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए, डू और डाई किसने कहा था, गांधी जी ने, इन दिस बॉम्बे क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। उसके बाद ही ये गांधी डू और डाई उन्होंने कहा था। ऑब्वियसली डू और डाई मतलब एकदम लास्ट स्टेज था ये। ओके, सो 8 एंड 9 अगस्त 1942 को जैसे ये अनाउंस हुआ, उसके बाद ब्रिटिश ने जितने भी प्रोमिनेंट कांग्रेस लीडर्स थे सबको अरेस्ट कर लिया। और इसीलिए क्विट इंडिया मूवमेंट की सिग्निफिकेंस ही इसीलिए है क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट एक्चुअली लीडरलेस हो गई थी, लेकिन बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हुई थी, क्योंकि लोगों में इतना आक्रोश, इतना फियर्सनेस आ गई थी तभी कि अब हमें चाहिए चाहिए, तो सारे लोग निकल के आए थे, एंड दैट वाज द रिजल्ट ऑफ देयर वर्क इन द होल। जो पिछले सालों में, इतने सालों में जो काम किया सबने मिलकर इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए, वो फाइनली क्विट इंडिया मूवमेंट में नजर आई थी, क्योंकि लोगों में वो कहते हैं अवेयरनेस आ गई थी, वो फाइट करने का होता है ना जज्बा आ गया था। तो दैट वाज सीन इन क्विट इंडिया मूवमेंट, क्योंकि सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, तो महात्मा गांधी को पुणे भेज दिया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, इन लोगों को अहमदनगर फोर्ट में जेल में डाल दिया गया था, बंद कर दिया गया था। ओके, तो यहाँ पर लीडरशिप लेकर आए थे राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, एस एम जोशी, जयप्रकाश नारायण, इन लोगों ने लीडरशिप दी इस मूवमेंट को। और 1943 में होता है ना, बहुत सारे आर्म्ड अटैक्स हुए गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में इन मद्रास एंड बंगाल। फाइनली इन 1944 गांधी जी वॉज रिलीज्ड। ठीक है, और इस क्विट इंडिया मूवमेंट के जो ये जो प्रोटेस्ट हुए था, इसमें ब्रिटिश ने बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेशन करने की कोशिश की थी। 538 राउंड्स ऑफ फायरिंग हुए थे, 60,000 प्लस लोग जेल्ड हुए थे, और 7,000 से मतलब अराउंड लोग को मारा भी गया था। सो इट वाज अ बिग बिग नंबर्स, लेकिन फिर भी ये मूवमेंट सक्सेसफुल था क्योंकि लोगों ने इतने ह्यूज नंबर्स में प्रोटेस्ट किया था। तो आप सोच सकते हो कि इतने ऑपरेशन के बाद भी दिस मूवमेंट वाज एक्चुअली अ बिग डील। तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट के समय ही जो ये आर्म्ड एक्टिविटीज का थोड़ा सा एक चलन निकला था, बहुत ज्यादा आर्म्ड एक्टिविटीज हो रही थी, एंड देयर कम्स द नेम ऑफ सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस बिलीव्ड कि हम अब ब्रिटिश को निकाल सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा फॉरेन हेल्प चाहिए, और इसीलिए उनको लग रहा था कि हम अगर जापान और जर्मनी के साथ मिलेंगे तो हम ब्रिटिशर्स को उठा के फेंक सकते हैं थ्रू आर्म्ड एक्टिविटीज। ठीक है, तो वो आर्म्ड रिवॉल्यूशन में बिलीव करते थे। तो उन्होंने ब्रिटिश और जर्मनी के हेल्प से काम किया भी था, शुरू भी किया था, लेकिन उसके बाद क्योंकि जर्मन जापान ने सरेंडर कर दिया 1945 में, तो उसके बाद इंडियन नेशनल आर्मी जो है वो वीक हो गई थी। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था वो देखते हैं। तो 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे थे, और उन्होंने फाइनली वो जो बहुत फेमस स्लोगन है दिल्ली चलो, उसकी वॉर क्राई दी थी। ठीक है, और वो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के प्रेसिडेंट थे, सुप्रीम कमांडर थे इंडियन नेशनल आर्मी को उन्होंने ही बनाया था ये INA। ठीक है, तो
उन्होंने स्लोगन भी दिया था जय हिंद। ठीक है, तो जय हिंद जो हम बोलते हैं ये एक्चुअली सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ओके, और उन्होंने 3 ब्रिगेड्स बनाए थे। एक तो सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड एंड नेहरू ब्रिगेड, और विमेन्स विंग भी थी। उन्होंने बिल्कुल आर्मी बना के रखी थी, ठीक है, ब्रिटिशर्स को हराने के लिए। और उसमें जो विमेन्स विंग थी वो नेम्ड आफ्टर थी किसके? रानी लक्ष्मी बाई। और वो लोग, ये जो पूरी आर्मी थी ये लेके वो पहले नागालैंड में जो कोहिमा है वहां पे गए, वहां पे विक्टोरियस हुए, फिर उसके बाद मणिपुर के इम्फाल की तरफ जा रहे थे। लेकिन वही अगेन जापान ने 1945 में सरेंडर कर दिया और इसीलिए इंडियन नेशनल आर्मी फेल हो गई। और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ताइवान चले गए। और कहा जाता है कि ऑन हिज वे टू टोक्यो ही डाइड ऑन 18 अगस्त 1945 इन अ प्लेन क्रैश। ओके, और जो भी इंडियन नेशनल आर्मी के सोल्जर्स थे इनकी ट्रायल हुई थी रेड फोर्ट दिल्ली में। और पंडित जवाहरलाल नेहरू, भूलाबाई देसाई और तेज बहादुर सप्रू, इन लोगों ने इनकी केस फाइट की थी, ठीक है, सोल्जर्स के लिए। फाइनली ऑन 15 मार्च 1946 जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे लॉर्ड एटली, उन्होंने कहा कि नाउ वी विल गिव राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन और फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी डिमांड इतने दिनों से चल रही थी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने दीजिए। ओके, एंड फॉर दिस पर्पस cabinet mission was sent in which 3 members of the British cabinet were there. That was Patrick Lawrence, Sir Stafford Cripps and A.V. Alexander. तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? मैंने जो याद रखा है LAC, ठीक है, L से लॉरेंस, A से अलेक्जेंडर और C से क्रिप्स। ठीक है, तो ये 3 लोग थे कैबिनेट मिशन में। और इन्होंने क्या क्या प्रपोजल्स दिए थे? तो इन्होंने कहा कि 3 ग्रुप्स ऑफ प्रोविंसेस को बनाया जाए। ठीक है, वो आप देखोगे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ऐसे करके इन्होंने ग्रुपिंग की थी प्रोविंसेस की। ठीक है, टू पोजेस देयर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, सबकी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन होगी। और यूनियन ऑफ इंडिया में ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स दोनों होंगे, जो चाहिए भी था हमारे लीडर्स को। फिर यूनियन को फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, कम्युनिकेशन, इसके राइट्स दिए जाएंगे एक्सक्लूसिव। और बाकी जो भी पावर्स हैं वो प्रोविंसेस को मिलेंगे, मतलब स्टेट्स को मिलेंगे। ठीक है, फिर इंटरिम गवर्नमेंट टिल अ न्यू गवर्नमेंट वाज इलेक्टेड, और जब तक ये सारी चीजें होती हैं, नया गवर्नमेंट इलेक्ट होता है, तब तक एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाए। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे कि जिसको भी हेड कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये इंटरिम गवर्नमेंट एक्चुअली कहाँ से उठाई गई थी? जो वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वहीं से मेंबर्स को उठा के ये इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी। ओके, तो सिचुएशन की नाजुकता को समझते हुए बोथ द मुस्लिम लीग एंड द कांग्रेस एक्सेप्टेड द प्लान। ठीक है, कि हाँ चलो ये सही है, हम एक्सेप्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इंडिपेंडेंस लेते हैं। So finally on July 1946 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो इलेक्शन हुई उसमें कांग्रेस ने 205 आउट ऑफ 214 जनरल सीट्स जीती थी, और मुस्लिम लीग ने 73 आउट ऑफ 78 मुस्लिम सीट्स जीती थी। ओके, एंड फाइनली ऑन 2 सितंबर 1946 इंटरिम गवर्नमेंट वाज स्worn अंडर जवाहरलाल नेहरू। After that, on 20th of Feb 1947, British Prime Minister Clement Attlee announced in House of Commons, जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट है, that British government will transfer powers to responsible Indian hands by a date not later than June 1948. तो maximum June 1948 तक हम सारे powers transfer कर देंगे to responsible Indian hands। और finally मतलब ये हो गया था कि आपका इंडिपेंडेंस हो गया पक्का। ओके, सो 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया का वाइसराय बनाया गया, बहुत सारे पावर्स दिए गए और भेजा गया कि जाओ अब फाइनल इसको सेटल करके आओ। और माउंटबेटन को लगा कि यार यहाँ पे पार्टीशन होना ही होना है, कोई और चारा नहीं है, जो सिचुएशन थी तभी। तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान रखा गया ऑन पार्टीशन ऑफ इंडिया, एंड कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग बोथ अप्रूव्ड दैट, बिकॉज उससे आगे कुछ कांग्रेस को भी रास्ता दिख नहीं रहा था, दैट यही अभी रास्ता बचा है, बन गया है इंडिपेंडेंस की संभावना, तो ले लेते हैं। एंड पार्टीशन केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 15 अगस्त 1947। और पार्टीशन के लिए ऑब्वियसली जो बाउंड्री कमीशन बनाई गई थी, जिन्होंने फाइनली डिसाइड किया था कि क्या बाउंड्रीज होंगे इंडिया पाकिस्तान के, स्पेशली इन पंजाब एंड बंगाल, तो उसके लिए बनाई गई थी बाउंड्री कमीशन। रैडक्लिफ उसके हेड थे, रैडक्लिफ कमीशन भी बोलते हैं इसको, रैडक्लिफ बाउंड्री कमीशन, आप याद रखिए। एंड फाइनली ट्रांसफर ऑफ पावर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज ऑफ बोथ द डोमिनियंस, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान, was done to frame their respective constitutions
तो दोनों ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज को इंडिया और पाकिस्तान के पावर ट्रांसफर कर दिए गए कि आप अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस बनाओ अब. ओके. एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज ऑब्वियसली पास्ड ऑन 18 जुलाई 1947. ठीक है. और उसके बाद ही आपकी पार्टीशन इन इफेक्ट 15 अगस्त 1947 से आ गई थी. तो 15 अगस्त को इंडिया आज़ाद हुआ था और 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है. So as I said, 14th August 1947 को पाकिस्तान केम इनटू एग्जिस्टेंस. वो अपने इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करते हैं एंड 15th अगस्त 1947 को इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस. तो हम उस दिन अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं. और इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन ही. तो इंडिया ने पूरी इज्जत देते हुए कि आपने इतना काम किया, इतनी मेहनत की, तो हमने गवर्नर जनरल इनको ही रखा था इंडिपेंडेंट इंडिया का. और इंडिपेंडेंट पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे मोहम्मद अली जिन्ना. ओके. एंड 30th ऑफ जनवरी 1948 को जो एक बहुत बड़ी मिस हैपनिंग है हमारे कंट्री में कि महात्मा गांधी वाज assassinated बाय नाथुराम गोडसे व्हेन ही वाज गोइंग फॉर अ प्रेयर. ओके. सो यस. सो इंडिपेंडेंस करा दिया हमने. टाइम फॉर एमसीक्यूज. सो फर्स्ट क्वेश्चन, द खेड़ा सत्याग्रह वाज लॉन्च्ड बाय गांधी इन सपोर्ट ऑफ. आप चाहें तो वीडियो पॉज कर सकते हैं, मैं साथ साथ ही आंसर्स डिस्कस करती हुई चलूंगी. ओके. तो खेड़ा सत्याग्रह आई थी 1918 में किया गया था और इसका आंसर है इन सपोर्ट ऑफ पेजेंट्स. तो जो पेजेंट्स अपने टैक्सेस पे नहीं कर पाए थे ड्यू टू फेलियर ऑफ क्रॉप्स, उनके सपोर्ट में ही खेड़ा सत्याग्रह लॉन्च किया था गांधी जी ने. ओके. इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट जो सत्याग्रह हुआ था वो था चंपारण सत्याग्रह, जो फर्स्ट सत्याग्रह था एक्चुअली इन 1917. ठीक है. गांधी जी का पहला सत्याग्रह. ओके. और अहमदाबाद मिल वर्कर्स था जो 1918 में अगेन हुआ था. ओके. चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट टुक प्लेस इन द ईयर. कौन से ईयर में हुआ था ये? 1922. जिसके वजह से गांधी जी ने मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया गया था. जो नेक्स्ट फेज ऑफ मूवमेंट होने वाली थी उसको सस्पेंड कर दिया था, जिससे काफी नाखुश थे कांग्रेस लीडर्स बिकॉज दे फेल्ट कि इट वाज द हाइट. ठीक है. उसके पहले हमारी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रही थी 1920 से 22 तक. ठीक है. सेकेंड फेज अनाउंस होने वाला था, लेकिन उसके पहले चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ जिसमें पुलिस मैन वेर बर्न्ड. एक पूरे जेल में आग लगा दिया था एंग्री मॉब ने, जो गांधी जी को पसंद नहीं आया. उन्हें लगा कि अभी भी लोग नॉन वायलेंस को समझ नहीं रहे, तो इसीलिए आफ्टर दिस द मूवमेंट वाज सस्पेंडेड. ओके. फर्स्ट, अगर अनदर क्वेश्चन, द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1919. ठीक है. ओके. आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू राइट इट. यस, आई रोट इट. ओके. द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1919. पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन कहाँ पास हुई थी? लाहौर में. ठीक है. और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे जवाहरलाल नेहरू. ठीक है. तो इसके बाद ही आपकी सिविल डिसोबीडियंस जो हमारी शुरू हुई थी 1929 की कांग्रेस सेशन में पास हुआ था पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन लाहौर में. प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू. क्योंकि ऑब्वियसली इसके पहले जो डोमिनियन वाला प्रपोजल रखा गया था नेहरू रिपोर्ट में, वो सुना नहीं गवर्नमेंट ने, तो इसीलिए जवाहरलाल नेहरू तो तभी भी नाखुश थे. मोतीलाल नेहरू का आइडिया था वो. तो फाइनली इनके डिमांड जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट बने और उन्होंने कहा कि अब तो हमारी बात चलेगी, पूर्ण स्वराज होगा अब, कंप्लीट इंडिपेंडेंस. ठीक है. क्योंकि ब्रिटिशर्स तो वैसे भी नहीं सुन रहे हमारी बात. ओके. सो द कम्युनल अवार्ड वाज अनाउंस्ड बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनल्ड. मैकडोनल्ड्स के बर्गर्स खाए हैं तो याद रखना उन्होंने ही कम्युनल अवार्ड दिया था. ठीक है. नहीं, मतलब वो नहीं थे मैकडोनल्ड के ओनर, मैं बस याद रखने के लिए मैकडोनल्ड बोल रही हूँ. ओके. सो द कम्युनल अवार्ड वाज अनाउंस्ड बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनल्ड इन 1932. एंड मैच द फॉलोइंग. तो जालियांवाला बाग मसाकर कब हुआ था? 1919 में. डांडी मार्च कब हुआ था? 1930 में. पूना पैक्ट कब हुआ था? देखिए, पूना पैक्ट और गांधी इरविन पैक्ट, देखिए हमें पता है कि गांधी इरविन पैक्ट होने के बाद ही इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है और गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे. तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस 1930 से 32 के बीच में हुई है. तो गांधी इरविन पैक्ट ऑब्वियसली पूना पैक्ट से पहले साइन हुई है, क्योंकि पूना पैक्ट बाद में आई ना, जब वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाली बात आई डिप्रेस क्लासेस की. तो गांधी इरविन पैक्ट हो गया आपका 1931. पूना पैक्ट उसके बाद होगा 1932. ओके. और बच गया अभी स्वराज पार्टी. अगर ये आपको याद नहीं था, जैसे कि मुझे नहीं रहता है, तो स्वराज पार्टी वॉज इन 1923. तो आप ऐसे भी कर सकते हैं. हर ईयर याद हो ऐसा तो जरूरी नहीं है, वैसे याद होना चाहिए था बट मुझे अभी याद नहीं आ रहा था, तो मुझे जो जो याद था पहले मैंने वो कर लिया. एंड जो बच गया वो स्वराज पार्टी है विच इज 1923.
Okay. So thank you so much for watching the video. और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो please mail me, and if you want to contribute something I can send you the details, but if you are not capable of contributing, that is also fine. You can just let me know that and I will send you the PDF. Okay, so thank you so much for watching the video and I will see you in the next video. Bye bye.